محمد کی بک اے ڈاکٹر ان دی ہاؤس پڑھیں، اگر آپ نیلسن منڈیلا کی کتاب اے لانگ واک ٹو فریڈم پڑھیں، اور پھر اگر آج آپ عمران خان کو سنیں تو ان سارے عالمی لیڈرز کے اندر ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اصلاحات کی طرف جاؤ گے تو ایک چھوٹا جیسا طبقہ ہمیشہ آپ کے راستے کو روکے گا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس چھوٹے جیسے طبقے کو کنٹین کرنا پاکستان ریلوے کے مزدور اور ان کے افسروں کی کاوشوں سے ناکامی کی طرف وہ جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہار کا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، اور آپ نے یہ سکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 50 سال سے جو ریلوے نقصان کی طرف آ رہا تھا، چند مہینے میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ سوائے پینشن کے 1,35,000 پینشنر کے علاوہ جو رننگ بزنس ہے جو 50 سال سے نقصان میں تھا، چند مہینے میں پاکستان کا یہ ادارہ منافع بخش ادارہ خدا کے فضل سے آپ کے سامنے آئے گا۔ آخر میں آپ کی کراچی کی ٹیم اور ان کے سرخیل گورنر سندھ اسد عمر، علی زیدی، رزاق داؤد، شوکت ترین، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آصف صدیقی، سمر خان، اور پھر خاص کر فواد چودھری صاحب کو یہاں پہ آنے پہ، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی وجہ سے ہماری ہیڈ لائن KCR کی زبردست لگے گی۔ میں سارے MNAs، سارے MPAs، سیاسی اور سماجی شخصیات جو کراچی کی ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم نے کراچی کے شہر کی روشنیوں کو دوبارہ 1970 کی دہائی کے اندر لے کے جانا ہے تو یہ اور اس کے پاکستان ریلوے کے دوسرے بہترین منصوبے جن کے اوپر گراؤنڈ پہ اس وقت ورک شروع ہو چکا ہے، میں سیکرٹری پاکستان ریلوے کو اور ان کی ساری ٹیم اور افسران کو اور مزدوروں کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ہمت اور انتھک کوشش کی وجہ سے یہ روشنیوں کا شہر خدا کے فضل سے اس ٹرانسفارمیشن پلان کے مطابق جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، دوبارہ اپنی حیثیت کو حاصل کرے گا اس ریجن کے اندر۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ اعظم خان سواتی صاحب، تھینک یو۔ معزز خواتین و حضرات، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور اگر وہ منصوبہ ٹھیک سے نہ بنایا جائے تو وہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بھی منصوبہ بندی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور اس حوالے سے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وفاقی وزیر کا کام قابل تعریف ہے۔ ہمارے درمیان جناب وفاقی وزیر صاحب برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسد عمر صاحب بھی موجود ہیں، اور میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان، گورنر، چیف منسٹر سندھ، وفاقی وزراء، منتخب نمائندے، عوامی نمائندے، خواتین و حضرات، آپ سب کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں۔ یہ آج سے 1 سال سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب ہماری میٹنگ ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، ظاہر ہے گورنر صاحب موجود تھے، چیف منسٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور آپ نے چیئر کی تھی وہ میٹنگ جس کے اندر حتمی منظوری دی گئی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی، اور وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ستمبر 2020 میں جس کی منظوری دی گئی،
اور اس کے بعد اس کے اوپر وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں مل کر کام کر رہی ہیں. آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ اب ہمیں زمین پر نظر آنے شروع ہو گئے. یہ زیادہ تر منصوبے ایسے ہیں جو بڑے منصوبے ہیں, مشکل منصوبے ہیں. ان میں سے کئی منصوبے بشمول KCR کے یہ وہ منصوبے ہیں جن کی سالوں سے نہیں دہائیوں سے کوشش کی جا رہی تھی اور وہ نہیں ہو سک رہے تھے, اور وہ منصوبے اب ہمیں حقیقت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری جو ایپیکس کمیٹی بنی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے, جس کی وفاق کی طرف سے نمائندگی علی زیدی, امین الحق اور میں کرتے ہیں, چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ, ناصر شاہ اور سعید غنی, 3 ممبرز اس کے پروونشل گورنمنٹ کے ہیں. ہماری کئی میٹنگز بھی ہوتی رہیں, اور مجھے یہ خوشی ہے اور میں یہ پبلکلی بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ ہماری تمام سیاسی جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں, اور کئی کیسز میں بڑے شدید اختلافات ہیں, اور وہ تھے نہیں, وہ آج بھی ہیں, اس کے باوجود کراچی کے لیے اس کام کرنے کے لیے پچھلے 1 سال کے اندر دونوں صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے مل کر فیصلے کیے ہیں, اور ہمیں اس لیے پیش رفت بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر وزیر اعظم صاحب جو 5 بڑے منصوبے تھے جو وفاق نے جن کی ذمہ داری لی تھی, مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ سب کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے. سب سے زیادہ ایڈوانس جو اس وقت منصوبہ تھا, جس کا اب آپ انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام ایپیکس کمیٹی اور وزیر اعظم آپ کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی نومبر کے مہینے کے اندر کہ آپ آئیں, اور وہ کراچی کا پہلا BRT پروجیکٹ گرین لائن جو ہے اس کا آپ افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی پہلی 40 بسیں پہنچ چکی ہیں یہاں پر. اسی طریقے سے اسٹارم واٹر ڈرینز, ابھی بھی بارش ہو رہی ہے کراچی میں, کراچی جو ہے وہ نہ صرف پہلے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی اور بارش کے اندر کئی علاقے کراچی کے جو ہیں ڈوب جاتے ہیں, تو وہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے. آپ کو خوشی ہوگی وزیر اعظم صاحب کے NDMA کو جو کام دیا گیا تھا ایمرجنسی کے اندر کام کرنے کا, اور ان کو ٹارگٹ یہی سیٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے اگلی برسات سے پہلے کلیئرنس کر دینی ہے. 11 لاکھ ٹن مٹیریل جو ہے وہ ریموو کیا گیا ہے ان 3 بڑے نالوں سے, محمود آباد, گجر اور اورنگی کا جو ہے. اب وہاں پر کام شروع ہونے والا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر فزیکل اس کا کنسٹرکشن کا جو کام ہے, کنکریٹ پورنگ ہوگی, ڈرینیج اس کے اندر ڈل رہا ہے, وہاں پر کنکریٹ وال بنائی جائے گی سپورٹ کے لیے, سیویج سسٹم ساتھ بن رہا ہے, اور 54 کلومیٹر کی سڑکیں بن رہی ہیں اس کے ساتھ, تاکہ اس کو کارڈن آف کیا جا سکے اور دوبارہ سے سالڈ ویسٹ اس کے اندر نہ گرائے جا سکے. وہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں گراؤنڈ کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے, اور جب تیز بارش کراچی میں ہوئی تھی تو اس کا فائدہ بھی ہم نے دیکھا. تیسرا پروجیکٹ جس کی تھوڑی سی میں تفصیل میں بات کروں گا, KCR, جدید KCR کا منصوبہ جو ہے اس کی جیسے میں نے کہا ابھی میں تفصیل سے بات کرتا ہوں. چوتھا منصوبہ وہ بھی ریلویز کے ساتھ فریٹ کوریڈور کا منصوبہ, علی زیدی صاحب کے پورٹ سے KPT سے ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے فریٹ سیدھا وہ یہاں سے کراچی کی سڑکوں کو بائی پاس کر کے. ابھی جو وہ ساری کراچی کی سڑکوں کو چوک کرتا ہے, ڈیمریجز ہوتے ہیں, شپ کلیئرنس کے اندر پرابلمز آتے ہیں, انوائرمنٹ پولوشن کا پرابلم ہوتا ہے کراچی کے شہر کے اندر, سیفٹی کا ہیزرڈ کریٹ ہوتا ہے. یہ تمام مسائل کے حل کے اندر وہ ہمیں مدد کرے گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ نہ صرف اس کی فیزیبلٹی تقریباً مکمل ہو گئی ہے, ہمارے پاس چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی سے انسولیسیٹیڈ اس کا پروپوزل بھی آ چکا ہے. تو اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اگلے چند ماہ کے اندر فریٹ کوریڈور کا منصوبہ بھی جو ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے کا ہم آپ کو دعوت دیں گے. آخری منصوبہ, سب سے اہم منصوبہ کئی کراچی والوں کی نظر میں, K4 جیسے آپ کو پتا ہے 1 دہائی سے زیادہ پروجیکٹ چل رہا تھا, منصوبہ چل رہا تھا, التوا کا شکار تھا, بہت زیادہ اس کے اندر کنٹروورسی بھی کھڑی ہو گئی تھی. اس لیے اس میں ہم نے ہٹلی ٹائم کی کہ شروع کے اندر 6 ماہ ایکسٹرا لگا لیتے ہیں, لیکن بالکل انجینئرنگ ورک کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہ ہو, ہمارے پاس ایک ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ سے انجینئرنگ ڈیزائن کی اپروول ہو اور اس کے بعد کام کیا جائے. وابڈا چیئرمین نے ابھی آپ لاسٹ ٹائم جب کراچی آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہمیں یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ٹارگٹ ہے اکتوبر 2023, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ 14 اگست پاکستان کی بہت بڑا دن ہوتا ہے, اور اس لیے
रिक्वेस्ट उनसे ये की गई है कि इसको और 6 हफ्ते ऑप्टिमाइज करें और ये 14 अगस्त 2023 तक इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सके। तो तमाम 5 मंसूबों के ऊपर पेशरफ नजर आ रही है। केसीआर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब, जो पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और वो चलते रहते हैं, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि उसकी एक वजह यह भी है कि वसाइल की कमी के साथ साथ जो जिद्दत, जो इनोवेशन, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसकी जरूरत है इन मसाइल को हल करने के लिए, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते अक्सर। और वो पुराना मुहावरा है, जरूरत ईजाद की मां होती है। तो अगर हमारे पास रिसोर्स की कमी है तो उस रिसोर्स की कमी को सामने रखते हुए अगर हम जिद्दत से काम लें, इनोवेशन से काम लें, तो हम ऐसे हल निकाल सकते हैं जो बाकी दुनिया उसकी तकलीद करे। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल पिछले साल जब कोरोना आया और तमाम दुनिया की बड़े बड़े मुल्क जो हैं उन सब की यकसा राय ये थी कि मुल्क को बंद कर दो, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और मुझे अभी तक याद है कि मार्च 2020 में जब मीटिंग्स होती थी और आपको ये रिकमेंडेशन दी जाती थी कि 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान बंद कर दें, तो आपका एक, मैं वसीम बदामी के अगर अल्फाज इस्तेमाल करूं, मासूमाना सवाल हर एक से ये होता था, अच्छा ये बताओ फिर 2 हफ्ते के बाद क्या होगा। आपने सही सवाल पूछा, और हमेशा वो कहते हैं कि लीडर वो होता है जो सही जवाब नहीं देता, लीडर वो होता है जो सही सवाल पूछता है। आपने सही सवाल पूछा और उसकी वजह से हम एक रास्ते के ऊपर गामजन हुए और हमने कहा कि किस तरीके से एक मुल्क जहां पे इतनी गुर्बत है, जहां पे एक इतनी बड़ी आबादी दिहाड़ीदार है, रोजाना की मेहनत मशक्कत करता है तो उसकी रात को रोजी उसके टेबल पर आती है, हम उनको उनके रोजगार को बचाते हुए किस तरीके से कम असर अपने सेहत के निजाम के ऊपर डाल सकते हैं। और फिर वो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी, उसको पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अडॉप्ट किया गया, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया गया, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से की गई, तमाम वफाक के फौजी और सिविलियन इदारे, तमाम सूबे। मुमताज शाह मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं। शाह साहब आप सुबह नहीं थे मीटिंग में, तो मैं चीफ सेक्रेटरीज के रोल की बात कर रहा था, और काजिम नियाज और आप 2 चीफ सेक्रेटरीज हैं जो शुरू से इसके अंदर शामिल रहे हैं। सारे इस निजाम को साथ लेके जो हमने किया उसके रिजल्ट्स भी कौम ने देखे, दुनिया ने देखे और दुनिया ने तारीफ की। इसी तरीके से ये केसीआर का मंसूबा जो है ये भी इनोवेशन से हम लेकर आ रहे हैं। हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम हर काम कर सकें जिसकी मुल्क को जरूरत है, और इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं अब आपको बता दूं, आज जिस चीज की आप ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, यह हमने फैसला किया टाइम को बचाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए काम, कि हमने कैपिटल वायबिलिटी गैप फंड से फंडिंग करनी है। तो बजाय कि हम इंतजार करें कि वो आएगा, जो प्राइवेट सेक्टर का ऑपरेटर है, फिर वो काम करेगा और फिर हम उसको फंडिंग देंगे, हमने ये फैसला किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे इसके अंडरपासेस हैं, ओवरहेड्स हैं, और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम पीएसडीपी से फंड करते हैं। 21 अरब रुपए का मंसूबा है, 6 अरब रुपए इसके सिंध हुकूमत दे रही है, 15 अरब रुपए इसके वफाक देगा। और जिस प्रोसेस से हम प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर, और आपको मैं बता दूं कि इसकी जो अप्रोच कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, उसमें भी हम इनोवेशन कर रहे हैं। और आपको बहुत खुशी होगी सुन के अली जैदी साहब के इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया केसीआर के अंदर। इंशाअल्लाह ताला अगले माह जो है ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। मैं जाती तौर पे खुद इन्वॉल्व हूं उसके अंदर। वीकेंड पे हमने 2.5 घंटे बैठ के मीटिंग की, मुझे अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस का जमाना याद आ रहा था। ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तैयार है, अक्टूबर के महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी है उसके बोर्ड से इसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। ये मंसूबा, इसकी जो प्राइवेट सेक्टर वाला जो काम है उसमें हमने सैफ फरीकी एक एमओयू साइन किया है। पाकिस्तान रेलवेज और प्लानिंग डिवीजन के 2 झेली इदारे जो हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये तीनों का एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है और ये साथ मिलके इस प्रोजेक्ट की ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद मार्केटिंग भी की जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले माह इंटरनेशनल ऑपरेटर का जो इस सारे सिस्टम को चलाएगा वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि हमने इनिशियल सॉफ्ट मार्केटिंग शुरू कर दी है, बहुत इंटरेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला अगले साल के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको जो केसीआर, मॉडर्न केसीआर का
جو منصوبہ ہے اس کے اوپر فزیکل کام ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ جائے گا. 18 سے 24 مہینے اس کی کمپلیشن ٹائم ہے. اور کراچی کا شہر وہ شہر جس کے اندر عمران اسماعیل, علی زیدی, اسد عمر, مراد علی شاہ, جب ہم ادھر چھوٹے تھے تو ہم وہ ایک لوکل ٹرین یہاں چلا کرتی تھی جس کو اب وہ KCR کہتے ہیں, ہم نے وہ دیکھی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہماری نوجوان نسل ہے کراچی کی, وہ ایک جدید ماڈرن انٹراسٹی ریل سسٹم دیکھے گی جس کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی بہترین ریلوے سسٹم کے ساتھ کیا جا سکے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا وزیر اعظم صاحب. آپ کا بار بار اصرار کہ میں پورے پاکستان کے اندر ایک ساتھ ترقی دیکھنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ وہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں دوسرے علاقوں سے پیچھے رہ گئے ہیں. نہ آپ پنجاب کا سوچتے ہیں, نہ سندھ کا, نہ خیبر پختونخوا کا, نہ بلوچستان کا, آپ پاکستان کا سوچتے ہیں. اسی سوچ کے ساتھ اس کے ریزلٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد ایک اور پروگرام کریں گے ہم جس میں آپ کو سندھ کے, یہ تو سندھ کے دارالحکومت کی آپ کو کہانی سنائی, سندھ کے باقی 14 جو ترجیحاتی اضلاع ہیں جن کا پیکج آپ نے اناؤنس کیا تھا, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کی بھی پروگرس بتائیں گے. وہاں پہ بھی اسی طریقے سے تیزی سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان, کراچی, سندھ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور بہتری کی طرف اللہ تعالی ہمیں لے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جی. جدید کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تقریب کا انعقاد. وزیراعظم عمران خان تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 1 سال قبل وزیراعظم کی سربراہی میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی منظوری دی گئی. دہائیوں پرانے منصوبے اب حقیقت کا روپ دھارنے لگے ہیں. سیاسی اختلافات کے باوجود کراچی کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت نے مل کر فیصلے کیے. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کراچی کی ترقی کے لیے 5 بڑے منصوبوں پر پیش رفت جاری ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ جدید کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. وفاقی حکومت کے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدت دینے کے ویژن کے تحت کراچی سرکولر ریلوے کو نہ صرف بحال کیا جا رہا ہے بلکہ موجودہ نظام کو وسعت اور جدت دینے کے لیے بھی ایک بڑے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. جدید سرکولر ریلوے کے 30 اسٹیشنز رہائشی, صنعتی اور دفتری علاقوں کو آپس میں ملائیں گے جس سے کراچی میں نہ صرف ٹریفک کا بہاؤ کم ہو سکے گا بلکہ روزگار کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کو بھی سہولیات میسر آ سکیں گی. کراچی سرکولر ریلوے منصوبے میں ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے بجلی سے چلنے والی ٹرینیں بھی شامل کی جائیں گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس موقع پر خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان آج اپنے 1 روزہ دورے پر کراچی میں موجود ہیں جہاں پر وزیر اعظم عمران خان کراچی میں جدید سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وفاقی حکومت کے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدت دینے کے ویژن کے تحت کراچی سرکولر ریلوے کو نہ صرف بحال کیا جا رہا ہے بلکہ اسے مزید جدت اور وسعت بھی دی جا رہی ہے. جدید سرکولر ریلوے کے آپ کو بتاتے چلیں کہ 30 اسٹیشنز ہوں گے جو کہ رہائشی, صنعتی اور دفتری علاقوں کو آپس میں ملائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب گورنر سندھ عمران اسماعیل, مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ, میرے فیڈرل منسٹرز, صوبائی منسٹرز اور MPs, خواتین و حضرات, اور ریلوے کے جو لیبر بھی میں نے سنا ہے وہ بھی یہاں ہیں اور آفیسرز بھی یہاں بیٹھے ہیں. میں سب کو آج یہ بڑا اوکیزن ہے کہ KCR کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کراچی کی اہمیت دنیا میں, آپ اگر بڑے بڑے ملکوں کو دیکھیں, ترقی یافتہ ملکوں کو, تو یاد رکھیں کہ ان کی جو ترقی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے, ان کی گروتھ ریٹ جو ہوتی ہے, وہ عموماً ایک شہر اس کو لیڈ کرتا ہے, انجن آف گروتھ ہوتا ہے, یعنی وہ جو اس کے پیچھے باقی سارا ملک چلتا ہے. انگلینڈ میں لنڈن جب پراسپر کرتا سارا انگلینڈ کرتا ہے. امریکہ میں بڑی دیر تک ابھی بھی نیو یارک, اور پاکستان کے اندر
कराची। कराची की अहमियत हम पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा सकते पाकिस्तान में। कराची एक ऐसा शहर है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर, क्योंकि हमने अभी आजम स्वाति ने बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई कि 70s में कराची क्या था, हम सब जानते हैं कराची 70s में क्या था। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। ये वो शहर है जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा था, ये सारा पाकिस्तान साथ लेके जा रहा था ऊपर। और कराची की जो मसले मसाइल आए उसके बाद उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। तो जो आज हमने, आज तो ये केसीआर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल सितंबर में हमने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए है। इसका जो फायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये केसीआर एक उसकी बहुत बड़ी एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे है। ग्रीन लाइन भी है और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेजी से कराची फैल रहा है। जो कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी आने से पहले वापडा के चेयरमैन से ब्रीफ लिया था, वो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है। वो जो अब उन्होंने डेट दी हुई है वो समझते हैं कि हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे, जो इंशाल्लाह कराची के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी। उसके बाद जो बाकी कराची के मसले हैं, और उन कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉर्पोरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीजें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। मैं आज चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूंगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी, कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा। क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है इतने ज्यादा कराची को सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी। जितना जितना शहर फैलता जाएगा उतना उतना मुश्किल होता जाता है। और ये सारे दुनिया के जो, अगर आप न्यूयॉर्क को भी देख लें तो वो जब स्पेस जब फैल नहीं सकता तो ऊपर जाता है शहर। तो हमें एक बहुत जरूरी है, जिस तरह हमने लाहौर को बचाने के लिए किया है, रावी सिटी जो लाहौर की बन रही है वो लाहौर को बचाने के लिए है, क्योंकि लाहौर भी फैलता जा रहा है और प्रेशर उसके ऊपर इतना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है हमारी, शहरों पे इतना प्रेशर है कि अभी से हमने आगे प्लानिंग ना की तो शहर ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। इनके लिए जो प्रॉब्लम्स अब कराची में आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि कराची तेजी से बढ़ गया है, ये जब तक कि अभी से प्लान ना करें कि हमने किधर इसको रिंग फेंस करना है, किधर हमने कौन से इलाके ऊपर लेके जाने हैं,
जब तक अभी से प्लानिंग नहीं होगी तो कराची एक कोई गवर्नमेंट इसको सही माने में फैसिलिटीज नहीं दे सकेगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा जो पाकिस्तान का फायदा है कि बंडल आइलैंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में, और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। इनके पास कैपिटल पड़ा है, डॉलर्स पड़े हैं जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है ताकि हमारी करेंसी को स्टेबलाइज हम करें। जब तक हमारे रिजर्व्स और ऊपर नहीं जाते, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जब तक वो बीच में टाइम फ्रेम है, तो हमें जरूरत है कि किसी तरह हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के डॉलर्स लेके आए पाकिस्तान में, और वो हमारी करेंसी स्टेबलाइज करेगी। और इस वक्त जो दोनों इंशाल्लाह जो लाहौर जो रावी सिटी है उसमें भी बाहर से पैसा आएगा जैसे ही वो प्रोजेक्ट और उस स्टेज पे पहुंच गया। और इसमें सबसे ज्यादा ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसा आएगा और बड़ी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं बाहर से। तो इसका सारा फायदा तो एक्चुअली सिंध को है, तो इसको रिकंसिडर करें। और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मजीद और करेंगे कि ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, सिंध के लिए भी। मैं कराची में जो ये सैलाब से जो मसले आए थे पिछले साल, जिसकी वजह से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना था, मुझे खुशी है कि उनके ऊपर काम हो गया। उन ड्रेन्स पे 3 जो नालों के ऊपर जो काम शुरू है, मुझे अच्छा लगा कि हमने अपना, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये, यानी आदत पड़ी हुई है लोगों को कि हम प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे खुशी है, और इसमें FWO को हम खास तौर पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में जो मेरा पॉइंट है वो ये कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्यों नहीं कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल विल नहीं होती। बड़े प्रोजेक्ट्स मुश्किल होते हैं, और उन मुश्किल प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं जाके एक गवर्नमेंट के और इतने ज्यादा मसले मसाइल होते हैं कि उनकी जब तक पूरी अटेंशन गवर्नमेंट की उन बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं होती तो प्रोजेक्ट्स कई दफा फंस जाते हैं, जाके मिनिस्ट्रीज में फंस जाते हैं, और फिर वो जितनी डिले होती जाती है उतने वो अनफीजिबल होते जाते हैं। तो ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, खास तौर पे KCR, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसले मसाइल भी आएंगे। और जितना हम इसको टाइम पे ख़त्म करेंगे उतना कम इसका खर्चा होगा। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 अरब का। इसलिए इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हम, फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इसके ऊपर कमिटेड है, और इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगी। शुक्रिया। जदीद कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में कोई एक मुल्क खुशहाली और ग्रोथ के लिए अपना किरदार अदा करता है। कराची की अहमियत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि गुज़श्ता साल सितंबर में कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया। इस प्लान के जरिए जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स, सूबाई मिनिस्टर्स और MPAs, ख्वातीन हज़रात, और रेलवे के जो लेबर भी मैंने सुना है वो भी यहाँ है, और ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हैं। मैं सबको आज ये बड़ा ओकेजन है कि KCR की आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। उससे पहले कराची की अहमियत, दुनिया में आप अगर बड़े बड़े मुल्कों को देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों को, तो याद रखें कि उनकी जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी होती है, उनकी ग्रोथ रेट जो होती है, वो अमूमन एक शहर उसको लीड करता है, इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, यानी वो जो उसके पीछे बाकी सारा मुल्क चलता है। इंग्लैंड में लंदन,
लंदन जब प्रॉस्पर करता सारा इंग्लैंड करता है, अमेरिका में बड़ी देर तक अभी भी न्यूयॉर्क, और पाकिस्तान के अंदर कराची। कराची की अहमियत हम पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा सकते पाकिस्तान में। कराची एक ऐसा शहर है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर, क्योंकि हमने अभी आजम स्वाति ने बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई कि 70s में कराची क्या था, हम सब जानते हैं कराची 70s में क्या था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। ये वो शहर है जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा था, ये सारा पाकिस्तान साथ लेके जा रहा था ऊपर। और कराची की जो मसले मसाइल आए उसके बाद, उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। तो जो आज हमने, आज तो ये केसीआर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल सितंबर में हमने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए है। इसका जो फायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये केसीआर एक उसकी बहुत बड़ी एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे है। ग्रीन लाइन भी है और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेजी से कराची फैल रहा है। जो कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी आने से पहले वापडा के चेयरमैन से ब्रीफ लिया था, वो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है। वो जो अब उन्होंने डेट दी हुई है वो समझते हैं कि हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे, जो इंशाल्लाह कराची के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी। उसके बाद जो बाकी कराची के मसले हैं, और उन कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉर्पोरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीजें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। मैं आज चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूंगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी, कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा। क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है इतने ज्यादा कराची को सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी। जितना जितना शहर फैलता जाएगा उतना उतना मुश्किल होता जाता है। और ये सारे दुनिया के जो, अगर आप न्यूयॉर्क को भी देख लें तो वो जब स्पेस जब फैल नहीं सकता तो ऊपर जाता है शहर। तो हमें एक बहुत जरूरी है, जिस तरह हमने लाहौर को बचाने के लिए किया है, रावी सिटी जो लाहौर की बन रही है वो लाहौर को बचाने के लिए है, क्योंकि लाहौर भी फैलता जा रहा है और प्रेशर उसके ऊपर इतना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है हमारी, शहरों पे इतना प्रेशर है कि अभी से हमने आगे प्लानिंग ना की तो शहर ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। इनके लिए जो प्रॉब्लम्स अब कराची में आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि कराची तेजी से बढ़ गया है,
ये जब तक कि अभी से प्लान ना करें कि हमने किधर इसको रिंग फेंस करना है, किधर हमने कौन से इलाके ऊपर लेके जाने हैं, जब तक अभी से प्लानिंग नहीं होगी तो कराची एक कोई गवर्नमेंट इसको सही माने में फैसिलिटीज नहीं दे सकेगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा जो पाकिस्तान का फायदा है कि बंडल आइलैंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में, और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। इनके पास कैपिटल पड़ा है, डॉलर्स पड़े हैं जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है ताकि हमारी करेंसी को स्टेबलाइज हम करें। जब तक हमारे रिजर्व्स और ऊपर नहीं जाते, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जब तक वो बीच में टाइम फ्रेम है, तो हमें जरूरत है कि किसी तरह हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के डॉलर्स लेके आए पाकिस्तान में, और वो हमारी करेंसी स्टेबलाइज करेगी। और इस वक्त जो दोनों इंशाल्लाह जो लाहौर जो रावी सिटी है उसमें भी बाहर से पैसा आएगा जैसे ही वो प्रोजेक्ट और उस स्टेज पे पहुंच गया। और इसमें सबसे ज्यादा ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसा आएगा और बड़ी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं बाहर से। तो इसका सारा फायदा तो एक्चुअली सिंध को है, तो इसको रिकंसिडर करें। और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मजीद और करेंगे कि ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, सिंध के लिए भी। मैं कराची में जो ये सैलाब से जो मसले आए थे पिछले साल, जिसकी वजह से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना था, मुझे खुशी है कि उनके ऊपर काम हो गया। उन ड्रेन्स पे 3 जो नालों के ऊपर जो काम शुरू है, मुझे अच्छा लगा कि हमने अपना, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये, यानी आदत पड़ी हुई है लोगों को कि हम प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे खुशी है, और इसमें FWO को हम खास तौर पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। आखिर में जो मेरा पॉइंट है वो ये कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्यों नहीं कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल विल नहीं होती। बड़े प्रोजेक्ट्स मुश्किल होते हैं, और उन मुश्किल प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं जाके एक गवर्नमेंट के और इतने ज्यादा मसले मसाइल होते हैं कि उनकी जब तक पूरी अटेंशन गवर्नमेंट की उन बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं होती तो प्रोजेक्ट्स कई दफा फंस जाते हैं, जाके मिनिस्ट्रीज में फंस जाते हैं, और फिर वो जितनी डिले होती जाती है उतने वो अनफीजिबल होते जाते हैं। तो ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, खास तौर पे KCR, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसले मसाइल भी आएंगे। और जितना हम इसको टाइम पे ख़त्म करेंगे उतना कम इसका खर्चा होगा। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 अरब का। इसलिए इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हम, फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इसके ऊपर कमिटेड है, और इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगी। शुक्रिया। जदीद